गुजरात कचेरी अहमदाबाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं और हमारा टॉपिक है व्हाट एंड हाउ आफ्टर मास प्रमोशन इन 12th। अभी जैसे कि इस कोरोना की वजह से बच्चों को 12th में मास प्रमोशन मिला है, और उसके बाद उन लोगों को कैसे एडमिशन मिलेगा, उन लोगों को उनके परसेंटेज का क्या क्राइटेरिया रहेगा और किस तरह से वो आगे का अपना करियर करेंगे, कैसे पढ़ाई करेंगे, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ दीप्ति मैम आई हैं। दीप्ति मैम करियर एनालिस्ट है, साथ ही वो करियर इंसाइट की डायरेक्टर भी हैं। तो दीप्ति मैम, मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगी, प्लीज आप आए और हमको गाइडेंस दें। दीप्ति मैम। Yeah, hi. हेलो मैम। Am I audible to everyone? यस मैम, यस मैम। Okay, hi. हेलो मैम। Yes. आपका ये जो क्वेश्चन है जिसमें ऐसा आपने क्वेश्चन किया है कि what and how after mass promotion in 12th, right? So here I'll talk about mass promotion. How has mass promotion affected us? So we can say that असेसमेंट पहले कैसे होता था? असेसमेंट जो हम अभी जो एकेडमिक्स में जो असेसमेंट चलता है लाइक इन ड्यूरिंग द स्कूल टाइम्स, सो असेसमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द academic performance of a student. So it gives the qualitative standards of the students and on what basis he or she can determine their education level, their understanding of a particular subject. Is it okay if I speak in English? यस मैम, नो प्रॉब्लम। Okay, okay. Yeah. So when a student is being judged by his academics, it gives a platform wherein it is required for the student to determine which subject as her field he or she should take. So the qualitative standards for students due to mass promotion may not impact the hardworking students, because they always know that they although the hardworking students, they definitely know that where they want to go, right? But there are some category of students who are like average and just above average. So these students face problem in determining which path they should take. Generally what happens कि when these average and average से ऊपर जो students होते हैं उन जिनका percentile somewhere around 50 plus और 50 to 65 या 70 के बीच में range करता है, उन category of students के लिए difficult हो जाता है due to mass promotion ये decide करना कि भाई हम commerce लें कि science ले कि arts ले, because क्या होता है कि उनके parents ये determine नहीं कर पाते हैं। ये जो lockdown की वजह से जो online studies होती थी उसमें जो बेसिक्स हैं बच्चों के वो क्लियर नहीं होते पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, तो वो लोग ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमको आगे जाके क्या करना चाहिए। सो ये जो एग्जाम्स का जो कैंसलेशन हुआ है, ये जो डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है उसको इंक्रीज कर दिया है कुछ जगह तक। सो स्टूडेंट्स कंफ्यूज इस वजह से हो रहे हैं कि भाई कौन सा प्लेटफॉर्म वी शुड चूज, आइदर वी शुड गो फॉर आर्ट्स और वी शुड गो फॉर कॉमर्स और वी शुड गो फॉर साइंस, विच वी शुड डू, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर aptitude for a particular subject. So इसमें major role कहाँ पे आता है? इसमें major role अब parents का आता है. So parents should help their children to determine which field they are good at. So parents can basically understand the liking of the subject up their children have and actually work on that. So the parents can decide कि भाई is my son or daughter capable of studying at a stretch of around 6 hours. So when a parent judges or understands कि भाई साइंस में मेरे बच्चे को कम से कम नहीं तो भी 6-7 घंटे 8 घंटे एक जगह बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वो जो चीज है वो पेरेंट्स डिसाइड कर पाएंगे। बिकॉज अभी जो सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसमें पेरेंट्स भी इस वजह से कंफ्यूज है कि बच्चों को क्या करना चाहिए और उनका क्या पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव है वो क्लियर नहीं हो रहा है। Right. So basically, यही हो रहा है कि students are not able to decide what they should do ahead in their life. Like they are confused in terms of two subjects or two particular fields that they are choosing for themselves. Either it is science or either it is commerce. They can say that science we can understand,
but we will not be able to work so hard in science. Like I cannot sit for a period of 6 to 8 hours. That consistency some students don't have. Some students are there जिनको ये पता है कि भाई हार्ड वर्क से हम आगे जा सकते हैं और ये हमारे लिए हम कर पाएंगे. So those for those students it is not a problem. पर यहाँ पे जो एवरेज जो स्टूडेंट्स होते हैं जो 50 से 70 के बीच में आते हैं उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई कौन सा स्ट्रीम हम चूज करें, कैसे उसको हम डिटरमाइन करें कि हमारे लिए ये सही होता है या गलत. समटाइम्स इसमें क्या होता है कि इफ पेरेंट्स आर नॉट एबल टू डिसाइड, एज काउंसलर्स वी हेल्प स्टूडेंट्स टू डिसाइड विच फील्ड दे शुड टेक. तो हम जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेने से पहले हम एक सेशन स्टूडेंट्स के साथ रखते हैं और उस सेशन में हम ये जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स से कि उनका कौन सा सब्जेक्ट एरिया इंटरेस्ट क्या है, कौन से इंटरेस्ट में व्हाट इज देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, सो दैट दे कैन परस्यू देयर करियर इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट रादर देन गोइंग बिहाइंड द क्राउड. राइट. सो ये एक डिटर्मिनेशन फैक्टर होता है विच प्रोसेस दिस इज द प्रोसेस दैट वी फॉलो एज काउंसलर्स. वी अंडरस्टैंड द माइंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड वी वर्क अकॉर्डिंगली. So the concept generally for students whose percentile rates above 80 to 90, for these kind of students it is easy because they have focused their studies in a particular manner. जो बच्चों जिनका परसेंटेज 85 के 90 से के रेंज में आता है उन लोगों को पता है कि भाई वी हैव टू क्रैक सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो इट बिकम्स easy for them to understand कि suppose if I am not able to do this, I can at least focus on my future. They've already decided इसमें कि हमको क्या करना चाहिए. बट जो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिनको प्रॉब्लम हो रही है अभी, जो हम लोग काफी, आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड लॉट ऑफ पेरेंट्स कन्वर्सेशन विद मी व्हिच इज हैविंग फॉर अ कपल ऑफ डेज आफ्टर द मास प्रमोशन वाज डन. द पेरेंट्स आर कंफ्यूज कि भाई वी हैव ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड सो मच ऑफ मनी आफ्टर आवर चिल्ड्रन एंड इट इज नॉट वर्थवाइल. उनको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. So this is where we help the parents to understand their children, and we carry out an aptitude test, a psychometric test, which helps to judge a particular interest of that particular student in a profile. तो इससे क्या होता है कि हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका पर्सनैलिटी टाइप कैसे रिलेट करेंगे हम पर्टिकुलर करियर टाइप से. तो आगे जाके कौन सी स्किल्स उनको डेवलप करनी है, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी फील्ड लेनी है, तो उससे कैसे आगे बढ़ के हमको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है उसका पूरा गाइडेंस हम देते हैं. तो स्टूडेंट्स बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग, दे गेट अ फील्ड, दे गेट अ राइट डायरेक्शन टू मूव अहेड इन देयर लाइफ्स. राइट. Are there any students who are like facing questions or they have some questions when I'm speaking something? मैम लास्ट में क्वेश्चन आंसर राउंड रख लेंगे. Okay, okay. Because in between क्या होता है कि there are students who have certain questions in their minds and probably they are not, they are not able to answer or they are not able to understand the discussion that I am into. So continuing with the discussion, it is just ये जो 12th के बाद का mass promotion है उसमें जरा भी the students need not get confused. If they are confused, they can just jot down or they can just reanalyze their skills. They can work on their area of interest and they can in fact take help of some counselors or me. If you want to get back to me, that's also okay. I can have a session with every means like those who get back to me in terms of understanding that particular student and then relating it to their future, like what is their liking, what is their ability of interest, their particular subject, their skills. I can jot down all these things and I can make them understand that which stream and which field they should go about. So this is the way we can clear or we can remove the mm, confusion that this mass promotion has created in the whole education industry currently. Because students, they are not, for the last 1.5 year they were working in a pattern that was online, which was not very much, you can say that
which was not very much adjusted to our environment. We all were used to with the physical classroom type of a teaching. And whenever the pattern of teaching changes, there are some category of students who don't gel with that particular teaching method. So this also can be made clear, and their problems can be solved at this point of time also. And what else I could say for this? This is the only way, like for the students who are having more problems after 12th in determining their career, they should do an analysis of their study pattern or their marks for the period from 9th to 11th, how much they have scored and which is their best subject they are into. So according to that, we will be able to give a generalized view, or the student can also understand that which particular subject he or she should take, because they themselves can analyze their area of interest, judging the marks, judging the concepts of the particular subject that they will be taking. Right. So this is all I wanted to say for the mass promotion, because generally this category of students that come to me is the same, and their question and their confusion is the same, because they are not able to understand the importance of their own ability that they have in their area. मैम अभी गुजरात में ऐसा आया था कि जिन जो लोग इंटरेस्टेड है, बच्चे और पेरेंट्स जो मतलब एग्जाम देने के लिए इंटरेस्टेड है वो दे सकते हैं एग्जाम, पर अगर जैसे कुछ बच्चों ने एग्जाम दिया, कुछ ने मास प्रमोशन लिया, तो उसमें क्या मतलब बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, उसका क्या है? जनरली क्या होगा कि मास प्रमोशन जो ये लोग करते हैं, उनका एक स्ट्रेटेजी होता है। वो जो स्कूल्स में एक उन लोगों ना की एक स्ट्रेटेजी है कि देयर इज 50, 25 एंड 25% ऑफ मार्क्स दैट दे हैव डिटरमाइंड, यानी आपका पर्टिकुलर 10th 11th में क्या ग्रेड आया उसका 50% वो लोग कंसिडर करते हैं, और ओवरऑल आपका 25% लेके दे गिव अ sort of a rating according to that. But I presume that when a person in 12th, if he or she is studying in 12th, they should not in fact give the marks or the percentage in this manner, because generally there are certain category of students which are not more attentive in 10th, and probably after 10th they become more sincere, they understand the importance of career. So this sometimes creates a confusion in students as well as in parents. I had an example wherein the girl, she was not so much she had approached me, their parents were telling that she was not so much serious in 10th standard, she was okay, but after 10th she gradually became more mature, understanding the concepts, and she was so attentive in maths and all the subjects. But she wanted to take science, and the teachers of the school were telling that she should take commerce. So this is where the parents main role come, understanding and then evaluating that which works the best for their children, because they have seen their children for the couple of years with them, so they are the best judge, right? Rather than we as counselors, I just help the lady and the parents and the girl as well. But I should say the parents are the best judge in this confusion, because उन जो mothers होती हैं वो बच्चों के साथ 24/7 रहती है, उनको पता होता है कि भाई how my start would my daughter or son be able to study 8 to 10 hours, घंटे तक पढ़ाई कर पाएगा साइंस में? So ये parents decide कर सकते हैं अच्छे से। हम जैसे एक मिनट मैम, जैसे कुछ ऐसा है कि अभी जैसे पहले वालों को मार्क्स मिले हैं और अब वालों को मास प्रमोशन मिला है, तो आगे जाकर के जैसे जॉब में जाएंगे तो उन लोगों को जैसे थोड़ी डिफिकल्टीज तो फेस करनी पड़ेगी कि मतलब अगर वो जॉब में गए तो वो परसेंटेज का कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? उसमें यही है कि दे विल नॉट बी एबल टू कैटेगराइज देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज। जब हमको मार्क्स मिलते हैं, हम उसको रेट कर सकते हैं कि भाई इसमें इतनी प्रोफिशिएंसी है, ये इतने लेवल तक इफेक्टिव है, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इतना मार्क्स लेके आया तो ही इज गुड इन मैथ्स। सो मास प्रमोशन में क्या होगा, दैट थिंग इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। मैं वही आपको एम्फसाइज किया कि जो 50 to 70% के जो बच्चे होते हैं जिनको एवरेज स्टूडेंट्स बोलते हैं, वो बच्चों को क्या होगा, उनको डिफिकल्ट रहेगा ये डिटरमाइन करने के लिए कि भाई हम कौन सा सब्जेक्ट लें।
मैथ्स ले, साइंस ले, बायो ले, या तो फिर कौन सा सब्जेक्ट ले। और जो ऑलमोस्ट जो बच्चे जो टॉप करते ही हैं हर बार एंड they are good for those students, we should always like they understand कि भाई I know I'm going to work hard and I have a plan, backup plan for myself. Like I am, there are some students who work or they think टू साइड्स। जैसे किसी को आईआईटी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो वो लोग 1 साल पहले से ही प्रिपेयर करना चालू कर देते हैं, 2 साल पहले से। तो वो बच्चे उस हिसाब से ट्रेन हो गए होते हैं, उनका माइंडसेट हुआ होता है। बट देर आर सम कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जिन लोग का कुछ प्रिपरेशन या कुछ लाइन ऑफ वो है ही नहीं, कमिटमेंट नहीं है, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मेरा क्या प्रायोरिटी है। तो उस वजह से क्या होता है कि देयर इज अ कंफ्यूजन, बिकॉज स्कूल ने तो जनरलाइज मास प्रमोशन कर दिया, बट इसमें क्या होगा कि ये पता नहीं चलता है कि इज दिस पर्सन गुड इन स्टैटिस्टिक्स और इज दिस पर्सन गुड इन मैथ्स। मैथ्स में सही होगा तो आगे इंजीनियरिंग ले पाएगा, बट स्टैटिस्टिक्स में सही है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो आगे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स नहीं ले पाएगा। वो ले पाएगा, वो इकोनॉमिक्स भी ले पाएगा, वो दूसरे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में भी, जैसे एचआर है, एचआर वाला सब्जेक्ट है, फाइनेंस है। तो वो ग्रेडिंग पता नहीं चलती है स्टूडेंट्स की मार्क्स के बिना। तो वो एक बेसिकली हम जो टेस्ट लेते हैं उसमें हम ये बता सकते हैं कि दिस स्टूडेंट विल डू मोर इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो वो स्किल्स एंड एबिलिटीज होती है, वो हम टेस्ट करते हैं वो टेस्ट से। तो उससे हमको पता चलती है कि स्टूडेंट्स आर एबल टू फंक्शन वेल इन दिस सेक्टर, सो दे वुड गो इन दिस सेक्टर। और हम क्या करते हैं, उनके पुराने डेटा भी लेते हैं, लाइक देयर 9th 10th 11th marks, their concepts and questions are framed in that manner as well. So that particular analysis is also done. So data analysis, whereas it critical reasoning and test is also being taken. So both ways we are able to understand the mindset of a child and then propose the best option for them. और मैम कुछ पेरेंट्स ऐसे जो ऐसा सोच रहे हैं कि हम लोग वापस से रिपीट करवा दें ताकि उन लोगों का जो मार्क्स का है वो आ जाए, मास प्रमोशन वाला जो अभी चल रहा है वो हट जाए। तो क्या ये सही रहेगा रिपीट करवाना, 10th है या 12th है? ये रिपीट करवाना मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा, बिकॉज क्या हो रहा है, ऑलरेडी बच्चे इतना सफर कर चुके हैं। वापस से वही रिवीजन, वापस से वही करिकुलम पढ़ेंगे तो दे विल लूज दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट? सो दे वोंट हैव दैट अप्रोच और पर्टिकुलर फील्ड चूज करने का उनमें वो जज्बा नहीं होगा। दे वोंट नो, दे विल लूज द एंथुसियाज्म टू स्टडी एज वेल। सो रिपीटेशन में क्या होता है, बच्चे डोंट स्टडी विद दैट इंटरेस्ट, सो दे डोंट स्कोर गुड मार्क्स। सो वो वहीं लाके खड़ा कर देगा उनको कि पे कहाँ से शुरू किया था, जहाँ से शुरू किया था वहीं लाके खड़ा कर देगा। तो बेटर के टीचर्स एंड parents and students should sit together, they understand, take the understanding from their children कि भाई आपको क्या पसंद है, उस हिसाब से आगे जाइए, उस हिसाब से उनको फील्ड चूज करने दीजिए। There is one girl, she sent a question mentioning that, wait, I need to check. Chat. Can you help me out with the, there was a girl, she sent a chat, yeah, wait. Ma'am, should we have a backup plan? Yes, you should in fact have a backup plan because see, when you are taking science, साइंस में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, साइंस मैथ, साइंस बायो और साइंस फिजिक्स। दो तीन ऑप्शंस है साइंस के। और एक इसका बोल जो कॉमर्स का है वो पर्टिकुलर एक ही ऑप्शन होता है। तो साइंस वालों के पास क्या होता है, दे हैव गॉट टू ऑप्शंस। तो हम क्या करते हैं, वी गिव देम टू ऑप्शंस, साइंस मैथ। और आपका जो पर्टिकुलर लेजर एक्टिविटी है जो आपको रिजुविनेट करता है, वो एक्टिविटी या तो पर्टिकुलर कोई एक और फील्ड में आप अपने आप को आगे रखिए। तो दो फील्ड होती है, तो वो दो फील्ड में क्या होगा कि बच्चे अपने आप को दोनों में ही दे कैन ब्रिंग आउट देमसेल्व्स, so they can work very nicely. So there should be a backup plan wherein the students should be able to determine at some stage of life that they are okay, if they're having this thing, it's fine. आई गिव एन एग्जाम्पल। मेरे पास एक और स्टूडेंट आया था, उसको उसके पेरेंट्स का ऐसा था कि ही शुड टेक कॉमर्स एंड दैट बॉय वांटेड टू टेक आर्ट्स। अब कॉमर्स करने के बाद आर्ट्स में जा सकते हैं, बट आर्ट्स करने के बाद कॉमर्स में नहीं जा सकते। सो दिस इज द वे अ बैकअप प्लान शुड बी टेकन, राइट? यदि बंदा कॉमर्स करेगा, कॉमर्स यानी वो तो 10th स्टैंडर्ड का था मेरे पास जो आया था लड़का, तो 10th स्टैंडर्ड में यदि उसने कॉमर्स लिया तो आगे जाके यदि उसको ऐसा होता है कि मेरे को आर्ट्स लेना है तो वो ले सके।
बट यदि 10th के बाद उसने आर्ट्स लिया और उसको आगे जाके ऐसा हुआ कि नहीं मुझे कॉमर्स लेना है, तो तब वो कॉमर्स नहीं ले पाएगा। तो बैकअप प्लान ऐसा रखना चाहिए कि हमारा जो हम फील्ड परस्यू कर रहे हैं वो सफर ना हो, हमको 1 साल वेस्ट ना करना पड़े, राइट? सो दैट शुड बी द वे वी शुड हैव अ बैकअप प्लान। मैम अभी जैसे आफ्टर 12th जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें और 12th में इनमें भी काफी गैप आ गया है, मतलब जैसे पहले 2-2 महीने में होती थी, अब 6-6 मंथ लग रहे हैं, 7-7 मंथ लग रहे हैं, तो उससे आगे ये जो कॉम्पिटिटिव, हाँ, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बहुत एक मजे की चीज है, मैं आपको समझाती हूँ। स्टूडेंट्स लिसन टू दिस। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके बोर्ड के एग्जाम का कंसेप्ट ही होता है, राइट? ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, लेट मी क्लेरिफाई द कंसेप्ट्स ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और द एंट्रेंस एग्जाम्स इज सिमिलर टू द बोर्ड एग्जाम्स, just the intensity of the questions that are being asked in the particular competitive exam is different. आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? जो कंसेप्ट है, जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है वही है, बट उनका इंटेंसिटी जो है वो डिफर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दे शुड कीप देयर प्रिपरेशन ऑन, because if they don't hone their skills, if they don't work on their skills, they will not be able to pursue their goals properly, right? Their targets that they have set for themselves. So because क्या competitive exams जो होती है, they have that reasoning, critical reasoning, analytical reasoning, all these things should be developed. So there are coaching classes which helps students to hone their skills these way. So they should prepare for these. And basically क्या हो रहा है, government is not allowing these centers to execute tests in more frequency, because when they gather this COVID particular cases of COVID increase in when they gather in more amount. So that is why the government is not being allowing to conduct these competitive tests so frequently. So they should keep working onto it, but they should not lose the enthusiasm to work on it. This could be the case. किसी और Any की भी more कोई questions? क्वेश्चन हो तो आप लोग मैम से पूछ सकते हैं। मैम आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। आप नेक्स्ट बार हम मैम के साथ फिर से कोई करियर रिलेटेड टॉपिक के साथ मिलेंगे। रोजगार कचहरी अहमदाबाद Okay. आप सभी का, मैम का और सब स्टूडेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू बोलता है कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। और मैम थैंक यू सो मच, Shruti. आप हमेशा बुलाने पर आते हैं और गाइडेंस देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू Thank ऑल। you, Shruti. थैंक यू Yeah, सो thank मच। you. थैंक यू। Thank you.